بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں عنایت اللہ کاشف ایڈوکیٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں لیگل انفارمیشن میں خوش آمدید۔ امپلائیز اولڈ ایج بینیفٹ انسٹیٹیوشن کے فیلڈ افسران کی کہانیاں پاکستان سے نکلتی ہوئی ملائیشیا، تھائی لینڈ، ترکی تک پہنچ چکی ہیں۔ EOBI کے اندر ہو کیا رہا ہے، خدا کے لیے آج کی اس ویڈیو کو آپ کے بچوں کا واسطہ ہے، اس کو مکمل سنیے گا، کیونکہ میں آپ پر یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ اس ویڈیو کو مکمل سنیں گے، دیکھیں گے، تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ EOBI کے اندر ہو کیا رہا ہے، عہدوں کا ناجائز فائدہ کیسے اٹھایا جاتا ہے، اور ان عہدوں کے ناجائز فائدے سے کس قدر مال متاع لوٹ کے لوگوں کی زندگیوں کا کھلواڑ کیسے کیا جاتا ہے۔ ہوش ربا انکشاف۔ قبل اس کے کہ میں اپنے موضوع کی جانب بڑھوں، آپ تمام احباب سے استدعا ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، بیل آئیکن کو پریس کر لیجئے، ویڈیو کو شیئر کر دیجئے۔ تو بڑھتے ہیں آج کے موضوع کی جانب۔ یہ جناب امپلائیز اولڈ ایج بینیفٹس انسٹیٹیوشن یعنی EOBI کے فیلڈ افسران کے بھاری رشوت کی کمائی سے ملائیشیا، تھائی لینڈ اور ترکی کے بیرون ملک سیر سپاٹے محنت کشوں کی حق تلفی کرنے والے بااثر فیلڈ افسران کی کرپشن کے ہوش ربا انکشاف۔ کئی دنوں سے سوشل میڈیا پر EOBI کے ایک فیلڈ افسر جواد علی ڈپٹی ریجنل ہیڈ ریجنل آفس ملتان کی جانب سے ملتان میں بھاری کرپشن اور بڑے پیمانے پر اثاثے بنانے کے الزامات پر مبنی ایک پوسٹ بہت تیزی سے وائرل ہو رہی ہے۔ اس سلسلے میں EOBI کے ذرائع کا کہنا ہے کہ ملتان سے تعلق رکھنے والا جواد علی شوکت علی امپلائیز نمبر ہے اس کا جناب 928983 اسسٹنٹ ڈائریکٹر آپریشنز کا تعلق 2014 میں بھرتی ہونے والے بیچ سے ہے۔ وہ بھی دیگر افسران کی طرح کسی نہ کسی طریقہ سے 15 دسمبر 2014 کو EOBI میں اسسٹنٹ ڈائریکٹر گریڈ 17 کی آسامی پر بھرتی ہونے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ اس کی تعلیمی قابلیت BBA بہودین زکریا یونیورسٹی ملتان بتائی جاتی ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ آپریشن کیڈر سے تعلق رکھنے والے جواد علی کی پہلی پوسٹنگ 19 دسمبر 2014 کو ریجن آفس گجرات میں اسسٹنٹ ڈائریکٹر آپریشنز کی حیثیت سے عمل میں آئی تھی۔ 18 مارچ 2016 کو اس کا ٹرانسفر ریجنل آفس شاہدرہ لاہور، 23 جنوری 2017 کو ریجنل آفس شیخوپورہ کر دیا گیا تھا۔ بعد ازاں 13 سپٹمبر 2019 کو جواد علی کا ٹرانسفر ریجنل آفس ناظم آباد کراچی، 7 فروری 2022 کو ریجنل آفس ویسٹ ہارف کراچی اور بالآخر ریجنل آفس ناظم آباد میں صرف 3 برس کے مختصر عرصہ میں ٹارگٹ پورا ہونے کے بعد 9 مئی 2022 کو جواد علی کو اس کے آبائی شہر ریجنل آفس ملتان ٹرانسفر کر دیا گیا، جہاں وہ اب ڈپٹی ریجنل ہیڈ کے منفعت بخش عہدے پر فائز ہے۔ واضح رہے کہ EOBI فیلڈ آپریشنز میں ریجنل آفس ناظم آباد کو سونے کا انڈا دینے والا ریجن سمجھا جاتا ہے، کیونکہ کراچی کا سب سے قدیم اور اہم ریجن آفس کے دائرہ اختیار میں ملک کا سب سے قدیم انڈسٹریل ایریا سائٹ شامل ہے، اور اس ریجنل آفس کی حدود ناظم آباد، شیرشاہ، پورے ضلع غربی، اورنگی ٹاؤن، ماڑی پور روڈ تک پھیلی ہوئی ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ جواد علی ریجنل آفس ناظم آباد میں ٹرانسفر کے وقت کراچی شہر کے جغرافیہ سے قطعی نابلدتا اور کوئی ذاتی سواری نہ ہونے کے باعث پبلک ٹرانسپورٹ سے سفر کیا کرتا تھا، لیکن اس نے دیکھتے ہی دیکھتے ناظم آباد کے فیلڈ آپریشنز میں صرف 3 سال کی مختصر مدت میں مبینہ کرپشن کے ریکارڈ قائم کر کے جس قدر تیزی سے اپنے آبائی شہر ملتان میں کئی اثاثے قیمتی املاک بنا لی ہیں کہ EOBI کے پرانے افسران اور ملازمین دنگ رہ گئے ہیں۔ واضح رہے کہ ماضی میں بھی EOBI کے اکثر فیلڈ آپریشنز کے افسران بھاری سفارشوں کے ذریعے ریجنل آفس ناظم آباد میں اپنی پوسٹنگ کرا کے مختصر عرصہ میں لکھ پتی اور کروڑ پتی بن چکے ہیں، جبکہ جواد علی نے تمام اگلے پچھلے ریکارڈ توڑ دیے ہیں۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ EOBI میں فیلڈ آپریشنز بدترین کرپشن کا گڑھ بن چکا ہے۔
जहां EOBI में एम्प्लॉइज और उनके वर्कर्स के रजिस्ट्रेशन के नाम पर एक अजीब खेल तमाशा जारी है। अमूमन EOBI के कानून से नावाकिफ फैक्ट्रियों, कारोबारी इदारों, तालीमी इदारों, पेट्रोल पंपों, छोटे कारखानों, रेस्टोरेंट, दुकानों के मालकान को भारी जुर्मानों और उनके इदारों के सील करने की धौंस धमकियां देकर बाज़ औक़ात उन एम्प्लॉइज़ के साथ गठजोड़ के जरिए उनके इदारों के वर्कर्स की असली तादाद की बजाय महज खाना पूरी करने के लिए इंतहाई कम वर्कर ज़ाहिर करके बड़े पैमाने पर रिश्वतखोरी और भत्ताखोरी की जाती है, जिसका बाकायदा हिस्सा चेयरमैन ऑफिस, हेड ऑफिस, B&C ऑफिस, रीजनल हेड, डिप्टी रीजनल हेड, बीट अफसर में तकसीम किया जाता है। EOBI के फील्ड ऑपरेशंस के अफसरान और एम्प्लॉइज के इस गठजोड़ के बायस इन इदारों में मुलाजमत करने वाले लाखों वर्कर्स EOBI में अपने रजिस्ट्रेशन ना होने के बायस मुस्तकबिल में अपनी पेंशन के हक से महरूम हो जाते हैं, जो गरीब मेहनत कश तबका के साथ सरासर जुल्म व ज्यादती है। ज़राए का यह भी कहना है कि EOBI में गुज़श्ता 2 बरसों से डायरेक्टर जनरल ऑपरेशन साउथ बराए सिंध बलूचिस्तान और डायरेक्टर जनरल ऑपरेशन नॉर्थ बराए पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान के कलीदी ओहदे खाली पड़े हुए हैं, जिसके बाद फील्ड ऑपरेशन में किसी किस्म की जवाबदेही और चेक एंड बैलेंस का अमल न होने के नतीजा में फील्ड ऑपरेशन के बदउनवान अफसरान बिल्कुल मादर पिदर आज़ाद हो गए हैं। EOBI में डेपुटेशन पर जो भी अफसर चेयरमैन तैनात होता है वो अपने ऑफिस तक महदूद और इजलासों पर इजलास मुनक्किद करके वक्त गुजारी करके वापस अपने डिपार्टमेंट चला जाता है। एक तवील अरसा से EOBI किसी भी चेयरमैन और डायरेक्टर जनरल ऑपरेशंस ने रीजनल ऑफिसों का दौरा करने और सालाना मुआयना करने और रिकॉर्ड चेक करने की जहमत नहीं की, क्योंकि EOBI का असल चेहरा उसके रीजनल ऑफिस है, जहां अपनी के लिए रुजू करने वाले रिटायर्ड माजूर मुलाजमीन और बेवाओं का भी बेहद बुरा हाल है, लेकिन इस मजबूर और बेबस तबका का कोई पुरसान हाल नहीं है। फ्री हैंड मिलने के बायस रीजनल ऑफिसों में तैनात सफारशी और ताकतवर रीजनल हेड अन्नदाता बने हुए हैं और वो अपने रीजनल ऑफिसों में भारी सिफारिशों, मांगे दामों, अपने मंजूर नज़र कमाऊ फूद बीट अफसरान को चेयरमैन ऑफिस, B&C ऑफिस के आला अफसरान की तयशुदा शराइत की बुनियाद पर बीट अलाट करते हैं। EOBI के फील्ड ऑपरेशन में तवील अरसा से जारी बदउनवानियों की इस तशवीशनाक सूरत हाल के बायस एक जानब तो लाखों वर्कर्स का ज़बरदस्त इस्तेसाल करके उन्हें पेंशन के हक से ही महरूम कर दिया जाता है, तो और दूसरी जानब EOBI के ये सफारशी बीट अफसरान देखते देखते लखपति और करोड़पति बनते जा रहे हैं, लेकिन उनसे जवाबदेही करने वाला कोई नहीं है। ज़राए का कहना है कि EOBI के चेयरमैन ऑफिस, B&C ऑफिस में तैनात अफसरान, रीजनल हेड, डिप्टी रीजनल हेड और बीट अफसरान का लाइफ स्टाइल उनकी आमदनी के मुकाबला में कहीं ज़्यादा है और उनके शहाना ठाट बाट देख कर कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकता कि ये मेहनत कशों के चंदा से चलने वाले फलाही इदारा EOBI के महदूद आमदनी वाले अफसरान हैं। ये बदउनवानी और राशि अफसरान के इनके शहरों के महंगे तरीन पोश इलाकों में रिहाइश पजीर हैं और शहरों समेत अपने आबाई इलाकों में कीमती अमलाक, कई एकड़ ज़राई अराजी की मलकियत, कई कीमती और नए मॉडल की सरकारी ग्रीन नंबर प्लेट वाली गाड़ियों, पेट्रोल पंप, कैटल फार्म, फार्म हाउस और दीगर कारोबार की मलकियत के हामिल हैं। और ज़राए का कहना है कि EOBI के फील्ड अफसरान के बेशतर बदउनवान अफसरान गरीब मेहनत कशों का हक मार कर इस कदर मालदार हो गए हैं कि वो हर साल बाकायदगी से अपने अहल खाना के साथ बरतानिया, अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, थाईलैंड, मलेशिया, टर्की और मुत्तहिदा अरब इमारात में तातीलात मनाने जाते हैं। हाल ही में EOBI की मौजूदा चेयरपर्सन नईर शाह दुरानी की जानिब से फील्ड ऑपरेशंस के कई मारूफ करप्ट और बदउनवान अफसरान, जिनमें इम्बा केस में ओहदा से तनज़ली की सजा पाने वाले वकार मज़ैदी डिप्टी रीजनल हेड अवामी मरकज़ को ऑस्ट्रेलिया, शोएब कुरैशी रीजनल हेड मुल्तान को 31 अगस्त को थाईलैंड और मलेशिया, जवाद अली रीजनल डिप्टी हेड मुल्तान को 6 सितंबर को टर्की और मुत्तहिदा अरब इमारात के तफरी दौरों के लिए NOC जारी किया गया है, जिस पर EOBI के सीनियर और दयानतदार मुलाजिमीन में बेहद तशवीश और बेचैनी पाई जाती है कि एक जानब चेयरपर्सन EOBI के साथ मुलाजिमीन की कानूनी और जायज़ मेडिकल सहूलियत
सहूलियात ख़त्म करने के दर पाए हैं, और दूसरी जानब फील्ड ऑपरेशंस के ताकतवर राशि और बदउनवान अफसरान के खिलाफ किसी किस्म की तादीबी कार्रवाई करने की बजाय उन्हें लाखों मिन्नत कशों के हकूक गसब करके कमाई हुई दौलत के बल पर बैरून मुल्क तफरी दौरों के लिए NOC पर NOC जारी करने में मसरूफ़ है। EOBI के सीनियर लेकिन नज़रअंदाज शुदा अफसरान का कहना है कि EOBI की मौजूदा इंतजामिया इदारा से मुखलस नहीं और बदउनवान अनासर की भरपूर सरपरस्ती में मसरूफ़ है, क्योंकि EOBI एक साबिक असूल परस्त चेयरमैन खाकान मुर्तज़ा और डायरेक्टर जनरल HR डिपार्टमेंट नज़र मोहम्मद बुज़दार के दौर में जब कभी किसी अफसर के बैरून मुल्क दौरा करने की दरख्वास्त आती तो वो उसे NOC जारी करने से कबल उसकी पर्सनल फाइल और उसके ज़राए आमदनी और दौरा के मकसद की मुकम्मल जाँच पड़ताल कराया करते थे। खाकान मुर्तज़ा EOBI के अफसरान के बैरून मुल्क दौरों और मगरबी ममालिक की दोहरी शोरियत की भी सख्ती के साथ हौसला शिकनी किया करते थे, लेकिन अब EOBI में वजारत समंदर पार पाकिस्तानी व तरक्की इंसानी वसाइल इस्लामाबाद से लेकर चेयरमैन ऑफिस कराची, लाहौर, इस्लामाबाद के B&C आफसों और रीजनल आफसों में एक मखसूस राबी का मुनज़्ज़म और मजबूत राज कायम है, जो खुद को हर किस्म के कानून और कायदा से बालातर समझती है। और EOBI में हर किस्म की बदउनवानी, भारी करप्शन की सरपरस्ती के तमाम ताने बाने चेयरमैन ऑफिस में एक अरसा से तैनात और एक मुस्तहिक उम्मीदवार मोहम्मद रियाज की हक तलफी करते हुए उसकी जगह खिलाफ ज़ाब्ता तौर पर भर्ती शुदा और ऑडिट पैरा में नामजद शुदा अफसर से मिलते हैं। दिलचस्प बात यह है कि EOBI की चेयरपर्सन मिस नाहिद शाह दुरानी चंद दिन कबल खुद भी बैरून मुल्क के दौरा पर चली गई हैं, लेकिन जाते जाते EOBI के अफसरान के आइंदा बैरून मुल्क दौरों के लिए NOC जारी करने पर पाबंदी लगा दी है। ज़राए का कहना है कि अगर FIA और नैब EOBI के 2007 और 2014 के बैच से ताल्लुक़ रखने वाले फील्ड अफसरान के बेशतर इंतहाई बाअसर कमाऊ पूत बदउनवान अफसरान के असासों, कीमती अमलाक, बैंक अकाउंट्स, बैरून मुल्क दौरों और कारोबारी के मुतल्लिक़ गैर जानबदाराना और शफाफ तहकीकात करे तो इन अफसरान के मुतल्लिक़ निहायत ही होशरुबा हक़ाइक़ सामने आएंगे कि उन्होंने इस मुख्तसर अरसा में अपने ज़ाती मफादात की तकमील की खातिर मुल्क के मेहनत कश तबका और EOBI को किस कदर नुकसान, नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान पहुँचाया है। तो जनाब ये थे वो हक़ाइक़ जो मैंने आपके सामने रखे, और ये वो तमाम हक़ाइक़ हैं जो आपके सामने आए हैं। और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आप क्या सोचते हैं और क्या होना चाहिए, क्या करना चाहिए, आपका क्या मुतालबा है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा।